जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। Over to you, Arvind sir. So let us start with our session with the lotus gratitude के साथ स्टार्ट करेंगे। मेरे साथ पीछे पीछे आंखें बंद करते हुए, जैसे ही मैंने आपको बताया होगा। Thank you, thank you, thank you God for being alive in this great morning. Thank you, thank you, thank you for my perfect body and mind. Thank you, thank you, thank you for my all the body organs working actively, fulfilling their intended purpose of existence. Thank you, thank you, thank you for my wonderful house and all its resources. Thank you, thank you, thank you for my wonderful family, friends. Thank you, thank you, thank you for my wonderful job, my wonderful profession, my wonderful business. Thank you, thank you, thank you. Now speak with me 6 metaphor जो कि मैंने आपको बार बार बताए हुए हैं, 6 metaphor of life. Thank you, thank you, thank you. Our life is like a rising sun. Our health is like blossoming flower. Our wealth is like continuous, constantly flowing fountain. Our relationship is like endless, growing green garden. Our future is like, कैसा होना चाहिए future? Golden expandable highways. Our immune system is, कैसा होना चाहिए immune system? Invincible wave. Our relationship is endless, growing green garden. और अब अपनी आइडेंटिटी की स्टेटमेंट को क्या बोला? आई एम के साथ जो भी लगाएंगे आपका वही मैनिफेस्टेशन। I am a powerful being. I am a joyful being. I am a peaceful being. I am a magical being. I am an awesome being. My body and mind is perfect and healthy, and it always be. Divine love, light, power, protection blanket is covering to me, my family, in the form of white light protection shield around us. We all are safe in it. Nobody has entered it. Thank you, thank you, thank you, God. Today is the wonderful day, happiest day, harmonious day of my life. All I need is within me now. So, मास्टर अफर्मेशन डेली के लिए जो क्या बोलते हैं हम,
I'm so happy and thankful God for everything now that congratulations, Arvind Kumar. Every day and always abundance of health, wealth, happiness, joy, peace, prosperity, promotion, progress, power, blessing, harmony, money, strength, stability, growth, miracle. Has been flourish, showering, attracting, circulating, manifesting in our life on day-to-day basis. And I am joyfully enjoying the same with a sense of gratitude. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you, thank you, thank you. So friends, आज मैं आपको एक बहुत ही आई ओपनर सेशन देने जा रहा हूं. बहुत ही वंडरफुल सेशन है. आप पूरा साइंटिफिकली बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट के जो साइंटिफिकली उन्होंने अपना वो निकाला है एंकरिंग. और जब इस सेशन को आप पूरी तरह से समझ लेंगे, सुन लेंगे, तो आपको कहेंगे वाओ, ये हमने पहले क्यों नहीं सीखा. अब आप देख रहे हैं कि मैं भी अपने यूनिवर्स को कमांड देता हूं कि अब मैं अपने से अपने पार्टिसिपेंट्स को वंडरफुल अच्छी से अच्छी चीजें बताना शुरू करूं. और आप देखेंगे कि ये बच्चों के लिए, सभी के लिए एंकरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. डे टू डे लाइफ में ये एनएलपी का वंडरफुल आई ओपनर सेशन है आपके सबके लिए. डे टू डे लाइफ में हस्बैंड वाइफ का, बच्चों को के लिए, सभी के लिए बहुत ही वंडरफुल एंकरिंग है. कैसे एंकरिंग होती है, क्या है एंकर, तो उसी के लिए मैं राजीव सर से कहूंगा कि चार्ट जो हमने दोनों ने बनाया है इम्पोर्टेंट, उसके साथ राजीव सर की मेहनत के साथ वो एक चार्ट बनाया गया है, उसी को मैंने भेजा भी है सभी को. राजीव सर को कहूंगा कि मैं पहले वो चार्ट लगा दें ताकि मैं उनको सभी को उस चार्ट के साथ थ्योरी से ले जाता हुआ इस ऑसम एंकरिंग के पूरे चैप्टर को आपको पूरे वीक में पढ़ाऊंगा. और आपको इतना अच्छा लगेगा कि यू विल फील लाइक यस. तो अपना चार्ट लगा सकते हैं राजीव सर अगर लगाना है तो. और मैं हल्के हल्के अब आपको बताना शुरू करूंगा अपना एंकरिंग पे. एंकरिंग क्या है. एक फ्रेंड्स, एक 1904 में एक साइंटिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं. उनका नाम क्या था, मैं हल्के हल्के पूरा तरह से आपके माइंड में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं. और अगर चाहेंगे तो आप नोट्स भी बना लिए, एक स्टोरी की तरह आपको समझा रहा हूं कि मैं क्या है. देखिए, अब सुनिए हल्के हल्के ध्यान से. उनका नाम क्या था, डॉक्टर इवान पावलोव. और अगर आपने देखा होगा डॉक्टर इवान पावलोव का, अगर मैंने नाम लिया तो एक्सपेरिमेंट उन्होंने 1904 में किया था. तो बड़े बड़े डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट उनको जानते हैं. और जो भी साइकोलॉजी के होंगे वो समझ गए होंगे कि उन्होंने बहुत ही वंडरफुल साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किया था. और उसको क्या कहते हैं, कंडीशनिंग ऑफ माइंड कहते हैं. उन्होंने एक बहुत वंडरफुल एक्सपेरिमेंट किया था कंडीशनिंग ऑफ माइंड के ऊपर. और फ्रेंड्स, ये आपकी सेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ओसीडी में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की डिजीजेस में बहुत इंपॉर्टेंट है. कंडीशनिंग ऑफ माइंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और बच्चों को क्लास में टॉप कराने के लिए और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए और अगर आप बच्चों को टॉप करवाना चाहते हैं अपनी क्लास में, और बच्चों को स्पोर्ट्स में टॉप करवाना चाहते हैं और उनको उस पीक पर लेके जाना चाहते हैं, जो कि उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और इसका फ्रेंड्स उन्होंने दूसरा नाम रखा था कंडीशनिंग ऑफ माइंड. मैं भी अपना आज ये फर्स्ट टाइम डिलीवर कर रहा हूं आपको पार्टिसिपेंट्स के लिए, तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट करूंगा. और आपको भी हो सकता है पहली बार में समझ आ ही जाएगा, मैं कोशिश करूंगा. क्योंकि अगर नहीं भी आता तो कोई बात नहीं. तो फर्स्ट टाइम में आपने गोल चपाती भी बनानी नहीं सीखी थी, फर्स्ट टाइम में आपने गाड़ी भी नहीं चलानी सीखी थी, फर्स्ट टाइम में आपने साइकिल भी नहीं चलानी सीखी थी. तो इसीलिए डोंट बी इन हरी, आराम से सुनिए इस थ्योरी को. और उसके बाद मैं आपको इतनी अमेजिंग जर्नी में लेके जाऊंगा कि आपकी बिल्कुल वाव की फीलिंग आ जाएगी. और उन्होंने उसके कंडीशनिंग ऑफ माइंड के साथ उन्होंने एक दूसरा नाम भी रखा था, कंडीशनिंग रिफ्लेक्सेस. कंडीशन रिफ्लेक्सेस वेरी, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. और अब इन्होंने क्या किया था, और इन्होंने एक बहुत वंडरफुल एक्सपेरिमेंट किया था 1904 में. और इन्होंने कुछ डॉग्स के साथ बहुत वंडरफुल एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि गूगल्स और हर जगह पढ़ा हुआ है. साइंटिफिकली और साइकोलॉजिस्ट से की तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, फुल्ली तरह से. ध्यान से सुनिए मेरी एक एक बात को.
जीजा जी का तमाशा देखो जरा। और डॉग्स के सामने उन्होंने कुछ मीट रख दिया था, लेकिन और जैसे कि मैंने ये डायग्राम बनाया है, कुछ डॉग्स के और मीट के बीच में उन्होंने एक हर्डल क्रिएट कर दी, मानो कि उन्होंने डॉग्स को एक साइड में बांध दिया होगा और आगे उन्होंने जाली वाली रख दी थी, ताकि डॉग्स सिर्फ दूर से मीट को देखें। मैं एक स्टोरी की तरह आपको बता रहा हूं, बड़ी आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और डॉग्स उस मीट के पास नहीं पहुंच पा रही। डॉग्स मीट तक को देख रहे थे, लेकिन मीट को तक नहीं पहुंच पा रहे थे। फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना पार्टिसिपेंट, मेरी एक एक लाइन को प्लीज। और ये मैंने अपनी आज ही कल वीडियो में भी डाल दिया, अपने यूट्यूब में, फेसबुक में भी डाल दिया है, दोनों, और उसको भी एक्सेस कर लीजिएगा प्लीज। और कुछ देर के बाद फ्रेंड्स, ये जो मीट था, जो इट बिकेम द ट्रिगर, ये एक कारण बन गया, ट्रिगर बन गया, कॉज बन गया इन डॉग्स की भूख का, बिकॉज डॉग्स को मीट अच्छा लगता है एंड दे वर वॉचिंग इट फ्रॉम ए डिस्टेंस। तो इन डॉग्स ने भूख का एहसास किया एंड दे स्टार्टेड फीलिंग हंग्री, और इन हंगर में इन्होंने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। सेलिब्रेट मींस लार टपकाना शुरू कर दी, लार टपकानी शुरू कर दी। और जैसे ही फ्रेंड्स, और जैसे ही इन्होंने लार टपकानी शुरू कर दी, आप देखेंगे कि टी मैंने लिखा हुआ है, डॉक्टर पेवलॉव ने एक घंटा बजाया, टन टन बजा दिया, घंटा बजा दिया डॉक्टर पेवलॉव ने। और उन्होंने, और फिर ध्यान से सुनिए, अगले दिन फिर डॉग्स के सामने उन्होंने, पेवलॉव ने मीट रखा, और डॉग्स मीट देख रहे थे, लेकिन मीट तक नहीं पहुंच पा रहे थे। और फिर उस अगले नेक्स्ट डे फिर ये मीट डॉग्स की भूख का कारण बन गया, और भूख में डॉग्स ने जैसे ही लार टपकाई, और फिर डॉक्टर पेवलॉव ने एक घंटा बजा दिया, टन। और इस तरह से इन्होंने फ्रेंड्स 3 4 5 बारी बजाया ऐसे। उसके बाद रेपिटेशन किया इसी प्रोसेस को 5-6 बार के बाद पूरे। और फ्रेंड्स 5-6 बार करने के बाद पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े टॉप क्लास के साइंटिस्ट उनके साथ थे, और एक वर्कशॉप में इन्होंने फिर क्या किया, और इन्होंने फिर उन डॉग्स को मीट खिलाया, और डॉग्स सो रहे थे, आराम कर रहे थे, और मीट बचा हुआ था। और डॉग्स, फ्रेंड्स नोट करना, डॉग्स भूखे नहीं थे, लेकिन फिर डॉक्टर पेवलॉव ने फिर वो घंटा बजाया, टन। और जैसे ही घंटे की आवाज इनके टन से इनके कानों में गई, और इन डॉग्स ने आंखें खोली और लार टपकाना शुरू कर दी, मानो कि वो बहुत भूखे हों, जबकि वो भूखे नहीं थे। उनका पूरा पेट भरा हुआ था, उनको पूरी तरह से मीट खिला दिया गया था सारा। अब जब भी आगे, और ध्यान से सुनिए, अब जब भी डॉक्टर इवान पेवलॉव घंटा बजाते, क्या होता था, इमीडिएटली डॉग्स क्या करते थे, लार टपकाना शुरू कर देते थे। वाह! अब उनको फ्रेंड्स, डॉग्स को लार टपकाने के लिए मीट की कोई आवश्यकता नहीं रही, मीट की नेसेसिटी नहीं रही उनको। ध्यान से सुनिए मेरी एक एक बात को प्लीज। और वो मीट की जगह वो घंटा ही उनका काम कर रहा था। और जो फ्रेंड्स पहले काम मीट कर रहा था, अब वो घंटा भी कर रहा था, और अब उनको मीट लाने की जरूरत नहीं रही, और घंटा बजाकर
लार टपकवा देते थे वो उसकी। और फ्रेंड्स आपको सीक्रेट बता दूं, इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को एंकरिंग कहा गया है। और अब मेरी बात को ध्यान से और सुनिएगा प्लीज। और इसका मीनिंग क्या है, आपको क्या समझ आया इससे? और अगर जैसे ही मैं आपको मीनिंग बताऊंगा तो आप कहेंगे वाह, ये तो मेरी लाइफ में रोज ही हो रहा है, रोज ही हो रहा है, और मेरे घर में तो ये चीजें डेली ही हो रही हैं। और इसका मीनिंग फ्रेंड्स अब मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इसका मीनिंग ये है फ्रेंड्स, और मैं बहुत आराम से इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप फ्रेंड्स जब भी आप अगर नोट करना चाहें तो नोट भी कर लीजिएगा आगे से, मैं तो अपने पूरे नोट्स बना के चलता हूं आपके साथ। जब भी आप किसी भी स्टेट की पीक पर होते हैं, मैं हल्के हल्के इसीलिए बता रहा हूं, जब भी आप किसी भी स्टेट की पीक पर होते हैं, ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, पीक जरूर है वर्ड यहां पर। when you are in the peak of your state, and what is the state, जो कि मैंने आपको बताया, हंगर इज आल्सो ए स्टेट ही है, एंगर भी तो एक स्टेट है, और not giving any forgiveness to anybody, that is also a state. रिवेंज एक स्टेट है, डिप्रेशन भी तो एक स्टेट है, थर्स्ट एक स्टेट है, लस्ट एक स्टेट है, लव एक स्टेट है, फियर भी तो एक स्टेट है फ्रेंड्स, हंगर भी तो एक स्टेट है। याद रखिएगा फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप इन्हीं स्टेट की पीक पर होते हैं तो फ्रेंड्स या तो उस समय आप कोई भी चीज देख लें, विजुअल्स, कोई चीज सुन लें, ऑडिटरी, घंटे की आवाज जैसे, या कोई और हॉर्न, या कोई आपको टच कर दे, जो कि मैंने VAK के साथ आपको 5 सेंस के रिसेप्टर बताए हुए हैं, जो आपकी कोई आपको टच कर दे, काइनेस्थेटिक फीलिंग हो गई, या आप किसी चीज को सूंघ लें, ऑल फैक्टरी जिसे कहते हैं, स्मेल जिसे कहते हैं, या कोई चीज आप टेस्ट कर लें, पांचों सेंस मैंने बता दी। या तो कोई चीज आपने देख ली, सुन ली, महसूस कर ली, या स्मेल कर ली, या टेस्ट कर ली। ये जो भी रिसेप्टर इसको कहते हैं, जो भी रिसेप्टर आपने पाए हैं, रिसेप्टर कहिए, जो भी कहिए इसको, और फ्रेंड्स ये इस स्टेट के साथ अपना लिंक बना लेते हैं। जैसे कि उस घंटे ने, उस आवाज ने, उसने अपना लिंक बना लिया किसके साथ? स्टेट ऑफ हंगर के साथ। जैसे ही डॉग उस आवाज को सुनते थे उसी स्टेट में आ जाते थे, और उससे कोई फ्रेंड्स फर्क नहीं पड़ रहा था कि उनके पेट में कितना खाना है, और वो उसी स्टेट को गेन कर रहे थे बार बार। इसी प्रोसेस को, इस लिंक बनने को, इस स्टेट के साथ जो लिंक बना है, घंटे का, इस आवाज का, इस रिसेप्टर का, इस स्टेट का, इस स्मेल का, इस स्टेट्स का, इसी लिंक बनने की प्रक्रिया को फ्रेंड्स सीक्रेट बता रहा हूं। एनएलपी में क्या कहा गया हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट, एंकरिंग कहा गया हुआ है। और फ्रेंड्स आपको एक और सीक्रेट बता दूं, साइकोलॉजी में भी ये चैप्टर पढ़ाए जाते हैं बड़ी अच्छी तरह, और वहां पर इसका नाम है कंडीशनिंग ऑफ माइंड, या इसे ट्रिगरिंग कहते हैं। और जो ये सारे विजुअल थे, साउंड थे, टेस्ट था, ये फीलिंग थी,
और ये खुशबू थी, और इन्हीं को फ्रेंड्स एंकर बोला जाता है। आपको अब पता चल गया होगा। और यहां तक आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। और इसी तरह से मैं अभी आपको फिर एक बार रिपीट करूंगा इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपनी अपनी प्रैक्टिस के लिए रात को आप अपने लिए अपने साथ अपनी एक किसी चेयर के साथ बैठ के इसी को प्रैक्टिस कीजिए। और इसी तरह से मैंने प्रैक्टिस कर करके आपके पास आया हूं आपको। और आप किसी भी तरह के आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एंकर बनाते हैं और कैसे एंकर बनाते हैं। जैसे ही चुटकी मैं बजाऊंगा और उसके मुंह में लार आनी पड़ेगी, पानी आने लगेगा। और इसको मैं आगे कहां यूज करेंगे तो अब मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। और इससे मैं आपकी समस्याओं को, एडिक्शन को, ओसीडी को आज से ही छुड़वाना शुरू कर दूंगा। और किसी के घर में भी अगर ओसीडी है, बैड हैबिट्स हैं किसी की, तो उसमें आपने वरी नहीं करनी। ये सारे दे ऑल आर ट्रिगर्स फ्रेंड्स, ट्रिगर्स हमने घर घर में पाले हुए हैं। और अभी देख लेना, जिसको भी डर लग रहा है उसको फियर का ट्रिगर बना हुआ है उसका, क्योंकि पर्टिकुलर सिचुएशन में मूड खराब होता है। फिर मैं बताता हूं, और अब मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए प्लीज सारे। ये 1904 की बात है, ये 1904 की बात। देयर वाज ए साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ये रूस के थे, ये रशियन साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट थे। इनका नाम क्या था आपको मैं याद भी करा रहा हूं, इवान पावलोव। क्या नाम था? पाव और लव से आपको याद आ जाएगा। आई मीन्स मैम, आई एम इन द वैन ईटिंग पैव विद लव, तो इवान पावलोव याद आ जाएगा। इसी को मेमोरी टेक्निक भी कहते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ डॉग्स लिए, कुत्तों के डॉग्स के सामने क्या रखा, मीट रखा। मीट डॉग्स का क्या बन गया, कॉज बन गया। किस चीज का कॉज बन गया? हंगर का। और जैसे ही उन्होंने हंग्री होकर और उसकी पीक पर गए, हंग्री होकर पीक पर गए, डॉक्टर पावलोव ने क्या बजाया? एक बेल बजाई। और इन्होंने फिर इसको कई बार रिपीट किया, और उन्होंने फिर डॉग्स को मीट खिलाया। और डॉग्स, मीट बचा हुआ था, डॉग सो रहे थे, और उन्होंने फिर वो कोई बेल बजाई उसी टोन में, और डॉग्स ने आंखें खोली और लात टपकाना शुरू कर दी, मानो कि वो बहुत भूखे हैं, जबकि वो भूखे नहीं थे। इसी तरह से आपको रिपीट करना है माइंड में और याद करना है। इसका मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स? यही मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग यह हुआ, क्या? जब भी डॉग्स को उन्हें लात टपकानी होती थी, और उनके पास दो ट्रिगर बन गए थे। एक डॉग के लिए मीट ट्रिगर था लात टपकाने के लिए, और एक बेल थी। और यानी कि डॉग्स अब एक जगह से नहीं, दो जगह से लात टपका रहे थे। एक मीट से, जो कि रियल कॉज था, और दूसरा, ध्यान से सुनना, साइकोलॉजी का कॉज था, साइकोलॉजिकल कॉज था, और वो पहले वाला रियल कॉज था। और फ्रेंड, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका फ्रेंड सिंपल मीनिंग क्या हुआ? जब भी आप किसी भी स्टेट की पीक पर होते हैं, ध्यान से सुनिए, जब भी आप किसी की स्टेट की पीक पर होते हैं, और उस समय आप किसी भी चीज को देख लें,
विजुअल किसी चीज को सुन लें, ऑडियो सुन लें, और कोई आपको टच कर दे गालों पर, कंधों पर, यानी कि टच आ गया, काइनेस्थेटिक फीलिंग आ गई। या किसी चीज को सूंघ लें, ऑल्फैक्टरी स्मेल हो जाता है। और या पांचवी सेंस, किसी चीज को आप टेस्ट कर लें, टेस्ट कहते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिए, जो पांचों ये रिसेप्टर लिए थे, तो ये आप ये इसके साथ अपना लिंक बना लेते हैं। किसके साथ? इस स्टेट के साथ। जैसे ही फ्रेंड्स ये रिसेप्टर आपको मिलते हैं, आप उसी स्टेट में पहुंच जाते हैं। और इस लिंक बनाने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को क्या कहा गया है? और एनएलपी में इसे एंकरिंग कहा गया है। और इन रिसेप्टर को क्या कहा गया है? और इन रिसेप्टर को फ्रेंड्स कहा गया है ट्रिगर्स। और फ्रेंड अब आप ध्यान से सुनिए, आपके 99% ऑल वांटेड बिहेवियर्स और एलर्जीज और ऑल डिजीज, फ्रेंड, दे आर जस्ट एंकरिंग। और फ्रेंड्स आपको और सीक्रेट बता दूं, एंकरिंग सिर्फ और सिर्फ आपके सबकॉन्शियस पर काम करती है। आप चाह कर भी फ्रेंड्स इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते जब तक कि आप एनएलपी नहीं जानते। अब मैं मास्टर एग्जांपल आपको देने जा रहा हूं फ्रेंड्स, जो आपकी सारी लाइफ में डे टू डे लाइफ में घटते हैं। क्योंकि आज मेरे को इस सेशन को देते हुए बहुत ही मजा आ रहा है। आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग द सेम। आज आपको मैं इतना सीक्रेट बताया है, कोशिश की है बताने की। तो और आपको रोजमर्रा के एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं, ताकि और आप जैसे ही इसको समझोगे तो आप कहोगे कि अगर आप मेरे को पहले पता होता तो मैं और भी अच्छे अपने एग्जाम को अच्छा कर लेता। अब ध्यान से सुनिएगा। अब मैं पहला एग्जाम्पल, आपने ध्यान से, सारे बच्चे और सारे पेरेंट्स भी सुनिए। आपने एक साउंड और एक साउंड कानों में और एक माइंड में बच्चों के ऐसी डाली है, और जैसे ही वो साउंड को सुनते हैं वो इमीडिएटली वो एक पीक पर पहुंच जाते हैं। 99% बच्चों की बात बता रहा हूं। अगर आप इसी टेक्निक को स्कूलों में कर दोगे तो सब बच्चों का बहुत ही, सारे टीचर्स अगर करना शुरू कर देंगे तो सारे बच्चों का बहुत ही भला हो जाएगा। और आपने एक बहुत ही वंडरफुल वॉइस उनके माइंड में डाली हुई है, वो है फियर। कौन सी? फियर। और फियर कौन सा डाला हुआ है? एग्जाम का। और बच्चे को जब एग्जाम आते हैं तो बच्चों के पीछे कैसे पड़ जाते हैं बच्चे, तेरा एग्जाम है, तेरा एग्जाम है, एग्जाम है। और हुआ था और हुआ क्या था? बच्चे को आपने, सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, सुनिए ध्यान से। बच्चे को आपने उसी पीक पर, स्टेट पर पहुंचा दिया। एग्जाम है, एग्जाम है, एग्जाम है, एग्जाम है। और स्कूलों में भी आपको ये ध्यान से सुनिए, स्कूलों में भी आजकल ऐसा ही पूरा एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है। और एग्जाम के दिन उन्होंने ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि एग्जाम है, एग्जाम है, एग्जाम नहीं हो गया, कि स्कूलों में उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि एग्जाम नहीं हो गया, दफा 144 लगा दी हुई है उन्होंने, देखो। और साइकिल वहां पर खड़ी करेंगे, ऐसा पैनिक, और इधर से उधर गर्दन नहीं करनी। बच्चों के ऊपर इतना पैनिक का एटमॉस्फेयर बना देते हैं, एग्जाम का, एग्जाम का, एग्जाम का। और जैसे ही बच्चा जरा सी गर्दन हिलाएगा तो इमीडिएटली टीचर चिल्लाएगी, हे चाइल्ड, व्हाट आर यू डूइंग? और आपने देखा है, मैंने भी देखा है अपने स्कूल में, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है।
और आपको देखोगे और आपको लगेगा कि ऐसा एग्जाम ना हो यहां कर की एक एक दफा 144 लगा दी हो। और हमने ऐसा माहौल बना रखा है फ्रेंड्स स्कूलों में एग्जाम के लिए, और उसी एग्जाम में बच्चे को इतनी डरावनी फीलिंग, फियर की फीलिंग आ गई। और उस फियर की फीलिंग में फ्रेंड ध्यान से सुनिए, और एक बेसिकली उस फियर की फीलिंग में वो एक वर्ड को सुन रहा है, एग्जाम एग्जाम एग्जाम। और फ्रेंड्स आपको ध्यान से सुनिए, सीक्रेट बताऊं, जब वो एग्जाम नहीं होता तो देखते हैं कि अब बच्चा उसी स्कूल में बहुत वंडरफुल तरीके से प्ले करता है, लेकिन वो एग्जाम के दौरान सब कुछ भूल जाता है। क्यों आप बताइए? तो क्योंकि जब आपने वो याद किया था सब्जेक्ट, वो एक्स स्टेट में किया था, कंफर्टेबल थे, बिकॉज ऑन दैट स्टेट यू आर वेरी कंफर्टेबल। जब एक्स स्टेट में थे आप वेरी कंफर्टेबल थे, तब आपने अपना सब्जेक्ट याद कर चुके थे पूरी तरह से। और फ्रेंड्स स्कूल में जाते ही आपकी स्टेट बदल गई, फियर। और आपकी स्कूल में जाते ही स्टेट बदल गई, फियर में तो आपने याद ही नहीं किया था, वो तो आपकी एक्स स्टेट में पड़ा है। यही तो मैं समझा रहा हूं आपको। और वहां पर कौन सी स्टेट में आप? फियर में। और फिर एग्जाम कैसा करेगा वो? फियर की स्टेट में कैसा करेगा? उसे याद ही नहीं रहेगा कुछ। और जब फिर देखो एक इंटरेस्टिंग चीज, जब बच्चा वो घर आता है फिर वो आपके साथ कंफर्टेबल स्टेट में आ जाता है, और वो सारे एग्जाम के क्वेश्चन आंसर आपको घर पे पूरे करके दिखा देता है, ये रहा आंसर मेरा। और फिर आप कहेंगे ये सिली मिस्टेक कर रहा है घर में आके, पता नहीं है क्यों कर रहे हैं। इसके फ्रेंड्स इसके सारे रीजन आप हैं, हमारे स्कूल के टीचर्स हैं, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है। और फ्रेंड्स इसकी जगह यह भी तो हो सकता था एग्जाम के दौरान, यह भी तो हो सकता था फ्रेंड्स कि हम एग्जाम के दौरान स्कूल में स्कूल में एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते थे कि हम वंडरफुल स्कूल में एक वंडरफुल खाना बनाते उनके लिए, उनको खूब खिलाते, उनको मूवी दिखाते, और उनको रेनी डांस कराते, और उनसे यह भी कह सकते थे कि बेटा जब भी तेरा मूड हो, ये क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है और ये अपने क्वेश्चन पेपर रखा है और इसमें जाके अपने क्वेश्चन पेपर के आंसर को लिखा। और वो हमारे बच्चे सारे वो उस एग्जाम की बड़ी एंशियसली इंतजार किया करते और देखते फिर, और देखते कि कितना वंडरफुल रिजल्ट आता। और उसी से आपने देखा होगा कि पीछे अभी 3 साल पहले 11th क्लास के प्रद्युम्न नाम के बच्चे ने कि एक जान ले ली एक बड़े स्कूल में, 3 साल पहले बड़े स्कूल में गुड़गांव में, बिकॉज दे वांटेड टू डिले द एग्जाम। व्हाट ए अनफॉर्चुनेट सिचुएशन देयर इन आवर कंट्री आल्सो। See the pain of the society, see the pain of the mother who lost her only child, because और हमें वो बच्चों को ये बताया ही नहीं गया कि एग्जाम को आप कंफर्टेबल जोन में क्यों नहीं लेते। अब मेरी ध्यान से बातें सुने, और अब आप मेरी ध्यान से बातों को सुनिए। आपकी डे टू डे लाइफ में आपको मजा आ जाएगा इस सेशन को सुनते, एक एक चीज को आपको सुनिए मेरे ध्यान से। अब मैं आपको आगे बहुत सारे बढ़िया चीजें बता रहा हूं एग्जांपल के साथ। आप एक प्लेयर हैं और आप एक बहुत वंडरफुल प्लेयर हैं, और सडनली आप देखते हैं कि एक आप वंडरफुल बैट्समैन हैं, और आप देखते हैं कि एक्स आदमी के सामने आप अचानक देखते हैं कि रन ही नहीं बना, या वाइट टीम के अगेंस्ट आप रन ही नहीं बना रहे। पता क्यों नहीं बना रहे फ्रेंड्स? बिकॉज
या तो उस समय आपने उस टीम के प्रति गलत रैंडम ओपिनियन ले लिया, अरे ये टीम बड़ी खतरनाक है, और जैसे ही वो टीम का मेंबर आपके सामने आता है और बॉल फेंक रहा था, और आप उस फियर में अपना विकेट गवा बैठते हैं फ्रेंड्स। और ये आदमी का चेहरा एंकर हो गया आपके अंदर फ्रेंड्स। और जब जब ये आदमी आपके सामने आएगा, आप अपनी बैटिंग खराब करेंगे और आपका कैरियर खराब हो जाएगा। एंड यू नो फ्रेंड्स, श्रीकांत लॉस्ट हिज जॉब जस्ट बिकॉज ऑफ वसीम अकरम। और ये उन्होंने अपने मुंह से कहा, he himself said it, because वसीम अकरम is his trigger। मैं इसके सामने रन नहीं बना पाया और हमेशा वो 0 पे आउट हो जाते थे, आपने देखा होगा। और वो 5 बारी आउट हो गए और हो गया उनका काम, और वो इमीडिएटली बाहर हो गए टीम से। और इसको क्या करना था, और सुनिएगा, मैं आज आपको पूरे दिल खोल के बता रहा हूं। और अब आप सुनिए ध्यान से, जो कि डे टू डे लाइफ में है। आप एक रेस्टोरेंट के सामने से जाते हैं, और अभी भी जैसे ही मैं अभी आप एक रेस्टोरेंट का नाम दूंगा, सिग्नल दूंगा, तो आप देखेंगे कि आपके मुंह में कैसे पानी आ जाएगा। देखिए, देखिएगा स्क्रीन पे। अब मैं राजीव सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्क्रीन पे अपना जरा व्हाइट बोर्ड पे रेस्टोरेंट का एम डाल दीजिए, एम डाल दीजिए, उस पे एम लिख दीजिए सर, मैकडोनाल्ड का एम डाल दीजिए। अगर एम डालते ही आप देखेंगे कि आपको बड़ा सा एम डालेंगे, अब देखो एम, मैकडोनाल्ड का एम, वाह। और इसके अपोजिट में आप डब्ल्यू कर दीजिए इसी को, एम मीन्स मैकडोनाल्ड का, और डब्ल्यू कर दीजिए साइड में, अपोजिट कर दीजिए उल्टा। और आपको फ्रेंड मैं बता दूं कि किस को देख के आपके मुंह में पानी आ रहा है, एम में या डब्ल्यू में, तो आप सब कहेंगे कि एम में मेरे को पानी आ रहा है, क्योंकि ये आपने, इसी को उल्टा कर दीजिए, एम को डब्ल्यू। हाँ, तो अब किसको देख के आपके मुंह में पानी आएगा, एम को देखते ही। और आपके माइंड के ऊपर क्या किया हुआ है मैकडोनाल्ड ने, आपके माइंड के ऊपर इन्होंने एंकरिंग बना रखी है, एंकरिंग अपनी। आपको, आप कितना भी कुछ कर ले, आप इससे बाहर नहीं आ पाएंगे। जैसे ही आप मैकडोनाल्ड का एम आएगा, आपको बर्गर याद आएगा, आपके मुंह में इमीडिएटली लार टपकनी शुरू हो जाती है। और जबकि डब्ल्यू में आपको कुछ नहीं नजर आएगा। आप देखेंगे कि अब आप इससे भी आगे देखिएगा, उसी चार्ट को ले आइए राजीव सर, फर्स्ट वाले को वापस। और आप देखिएगी कि एक छोटा सा बच्चा, अब मैं बच्चे का बहुत वंडरफुल एग्जांपल दे रहा हूं। स्कूल में एक छोटा सा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, उससे उस दिन होमवर्क नहीं हुआ। जितने भी टीचर हैं ध्यान से सुनिए। और जब बच्चे से होमवर्क नहीं हुआ तो टीचर ने उसे बाहर पीछे खड़ा कर दिया, उसको पनिशमेंट के लिए। और देखिए कि बच्चा पीछे खड़ा है क्लास में, और उसकी स्टेट कहां जा रही है, बिल्कुल नीचे जा रही है। ही इज इन फ्रस्ट्रेशन। और उसकी फ्रस्ट्रेशन की पीक पर उसने क्या किया, और उसने सारी क्लास को देख लिया। और वो जो सारी क्लास जो बच्चों की बैठी थी, उस क्लास को देख, टीचर को देख लिया। और ये फ्रस्ट्रेशन, एंगर, फियर, और वो इसकी पीक पर जैसे ही गया, और इस टीचर को भी देख लिया, उस क्लास को भी देख लिया। और फ्रेंड्स, जैसे ही
उस टीचर की वो क्लास में घुसेगा, टीचर उसे अच्छा नहीं लगेगा और वो कहेगा मैं नहीं जाता इस क्लास में, और या मुझे नहीं अच्छा लगता। और अगर आप उसे जबरदस्ती भेजेंगे फ्रेंड्स, तो उसके पेट में दर्द होगा, सचमुच में होगा उसके पेट में दर्द, बिकॉज ही इज नेगेटिव, एंकर विद दिस नेगेटिव फीलिंग। और इतना ही नहीं, ध्यान से सुनिएगा, और वो इस क्लास के साथ भी नहीं जाना चाहेगा, और फिर वो वहां पर एक गेम खेलेगा, या तो वो इस क्लास को बंक करेगा या फेल हो जाएगा जानबूझकर, अनकॉन्शियसली, ताकि इस क्लास से उसका पीछा छूट जाए, ताकि जिस क्लास में उसको इंसल्ट मिली है। और अब आगे देखिएगा, और अब फ्रेंड्स आपको डे टू डे लाइफ के एग्जांपल बता रहा हूं, ताकि कनेक्शन कर रहा हूं एंकरिंग का आपके साथ, कितने बढ़िया तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूं आपको एक एक सेंटेंस के साथ समझाने की। आप और एग्जांपल देखिएगा ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। आप गाड़ी चला रहे हैं, सडनली आपके सामने रेड लाइट आ जाती है, सिग्नल ऑन हो जाता है रेड लाइट का, और पता क्या होता है, आपका पैर ऑटोमेटिकली एक्सीलेटर से ब्रेक पर आ जाता है। क्यों? बिकॉज यू आर एंकर। और इससे भी ज्यादा देखिएगा, और आप इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट देखिए, आप एक सेल्स की जॉब में थे, एक आप आईटी की जॉब में थे, आपका घर पर काम हो रहा था, सब ध्यान से सुनेंगे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, कि अचानक कि आपके बॉस का फोन आ गया, टारगेट पूरे नहीं हुए, उसने आपके साथ गलत बोल दिया, और जैसे ही उसने गलत बोला आपका मूड खराब हो गया, और वो बोलता जा रहा है, आप बोल रहे हैं सॉरी सर सॉरी सर सॉरी सर, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा। और उसी समय जब आप सॉरी बोल रहे हैं, आपका मूड खराब है, और उसी समय आपकी बेटर हाफ, आपकी वाइफ आपके सामने आ गई, तो पता है क्या हुआ? हो सकता है इस फ्रस्ट्रेशन का, आपके एंगर का ट्रिगर आपकी वाइफ बन गई हो, और जैसे ही नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स अजमा के देख लेना इसको, नेक्स्ट टाइम जैसे ही फोन की घंटी बजी और आपकी वाइफ सामने आई, आपका मूड और आपका मूड खराब हो जाएगा, और आप कहोगे अपनी वाइफ को कि प्लीज मेरे सामने मत आया करो। जब भी फोन बजता है मेरा मूड खराब हो जाता है, क्योंकि आपने अपनी वाइफ को ही अपना गलत ट्रिगर बना लिया फ्रस्ट्रेशन का। और इससे भी ज्यादा आगे देखिएगा, जो डे टू डे लाइफ में आपके एग्जांपल हो रहे हैं, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूं, प्लीज आगे देखिए। आपका बेडरूम है, सब ध्यान से सुनेंगे इसको बड़ा ध्यान से। आपका बेडरूम है और मैरिड है, जो आपका बेडरूम है, आपका मैरिड है, तो वो बेडरूम काय के लिए है? किस चीज? फ्रेंड, या तो आप उसमें सोएंगे, या जहां पर जाके आपकी अच्छी फीलिंग होंगी, आप रिचार्ज हो जाएंगे, या फिर उस बेडरूम में आपकी अच्छी वंडरफुल टुगेदरनेस की फीलिंग आनी चाहिए। लेकिन आप डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं? आप देखिए, और बेडरूम में जाते ही, एंटर रूम में ही हस्बैंड वाइफ, मैक्सिमम लोग बेडरूम में दरवाजा बंद करके क्या करते हैं? लड़ना शुरू कर देते हैं, हस्बैंड वाइफ, और हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई चल रही है। और उसी समय क्या होता है? दोनों की फियर और एंगर में दोनों की स्टेट खराब हो गई। अब दोनों की जब दोनों की स्टेट खराब हो गई, और कहां पर स्टेट खराब हो गई? बेडरूम में, और वो बेडरूम ही आपका एंकर बन गया। और जब भी आप अगली बार से बेडरूम में जाएंगे, ना तो आपको वहां नींद आएगी, और टुगेदरनेस का तो सवाल ही खत्म हो गया। तो फिर अब आप मेरे को कहेंगे कहां पर जाके हम लड़ें?
कहां पर जाके लड़ें? लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, तो प्लीज अपने बेडरूम में कभी भी लड़ाई ना कीजिए। और इससे क्या होगा, ना तो आपकी रोमांटिक लाइफ रहेगी और ना ही आपको रात भर नींद आएगी। बेडरूम में कभी भी लड़ाई में जाकर अपनी स्टेट को खराब ना करिएगा प्लीज। अब मैं दूसरी बात बता रहा हूं, और आप एक इंपॉर्टेंट बात और सुन लीजिए। जब आप खाना खाएं, व्हेन यू आर ईटिंग फूड, और आप पीक पर जाके, नेगेटिव स्टेट की पीक पर जाके ना जाइएगा। मान लीजिए आप यहां पर गुस्से में हैं और आपने खाना खा लिया, और ये खाना कैसे जहर बनेगा मैं आपको 5 मिनट में प्रूव करके दिखाऊंगा। सिर्फ 5 मिनट बाद आपको बताऊंगा ये खाना ही कैसे जहर बन जाएगा। और जो जैसे ही वो बाबा कहते हैं कि एक बाबा कहते हैं कि मेरा च्यवनप्राश खाओ और उससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। और आज या नेक्स्ट सेशन में आपको अगले 10 मिनट में प्रूव करने जा रहा हूं। पहली बात, आपको, और जिस बाबा ने ये कहा है, और जिस बाबा ने कहा है कि मेरा च्यवनप्राश खा के इम्यूनिटी बढ़ेगी, और जब उसका जस्ट इसका अपोजिट हो सकता है फ्रेंड्स, अगर आप गलत स्टेट में हैं। वो सारे जनरलाइज सेंटेंस हैं, रियल नहीं है। और देखिएगा, और देखिएगा, जब भी आप घर में घुसें और अगर आपकी नेगेटिव स्टेट है और आप घर में घुस गए, और ये घर ही आपका एंकर बन जाएगा, और घर में घुसते ही आपका मूड खराब हो जाएगा। इसलिए मैं काफी सारे लोगों को देखता हूं कि मैं घर में नहीं घुसता हूं, और वो 1-1.5 घंटे तक तो बाहर ही घूमते रहते हैं, क्योंकि उनका मन ही नहीं करता अंदर जाने के लिए। अगर जब उनको बहुत ही मजबूरी आती है तभी वो अंदर जाते हैं। और दिस इज द फैक्ट। तो आज फिर आप एक काम करेंगे, यहां पर आज मैं 2 चीजें करवाऊंगा। नंबर 1, एम ऑफ दिस चैप्टर क्या है, एम ऑफ दिस सेशन क्या है। फर्स्ट, क्रिएट, लिख लो, गुड एंकर। और आपको पता है कि हमारे जितने भी सेल्समैन होते हैं अपनी सेल्स मीटिंग में, सेल्स फील्ड में, पता है आपको कि इनको नो से क्यों डर लगने लगता है? बिकॉज अचानक फ्रेंड्स उनको मना हुई नो, और उनकी स्टेट खराब हो गई, और इमीडिएटली वो वर्ड उसके साथ एंकर हो गया। वाओ। सेकंड, और अब आपको यहां पर क्या करना था, जो पहले तो मैं आपको अच्छे एंकर क्रिएट करना सिखाऊंगा, और दूसरा, सेकंड क्या होगा? सेकंड फ्रेंड्स होगा कोलैप्स बैड एंकर। और एंकरिंग में सिर्फ 2 ही होते हैं, और ये दोनों कामों को, इनको मैं आगे अपने करवाऊंगा। ये मेरे पर छोड़ दीजिए। और अगर आपके पास कोई बैड एंकर है, और इनका सवाल आपका होगा कैसे ढूंढें, हाउ टू फाइंड देम, ये आपका काम नहीं है, मेरा काम है, मैं आपको ढूंढवाऊंगा उनको। ये मेरा काम है।
आपका एंकर का, चाहे सिगरेट पीने का है, चाहे लीकर पीने का है, चाहे किसी का चीज का एंकर है, उसको मैं छुड़वाऊंगा। गुटखा खाने का एंकर है, बीवी बच्चों से लड़ने का एंकर है, शराब पीने का है, गुटखा खाने का है एंकर है, ज्यादा खाने का एंकर है, ठीक है। और सभी के अंदर फियर के भी एंकर बने हुए हैं, सभी के एंकर। तो वो आगे आगे धीरे धीरे मैं उनको बताऊंगा और छुड़वाऊंगा आपके एंकर। तो फ्रेंड्स, अभी तक का सेशन आपको कैसा लगा? इसी को मैं अभी थोड़ा सा आगे, जैसे मैंने अभी बेल्ट के साथ बताया था, अभी मैं इसी सेशन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हुए आज एंकर को मैं पूरा का पूरा अपना दिल खोल के आपको देना चाहता हूं। इसीलिए आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग दिस सेशन वंडरफुली। एंड जस्ट अपने चैट बॉक्स पे अगर अच्छा लगता है तो यस कर दीजिए, या अपना थम्स अप कर दीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो जस्ट चैट बॉक्स पे अपना वो कीजिए। और सभी को आगे चलते हुए मैं अभी आपको थोड़ा सा और आगे चल रहा हूं इसी सेशन में। आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग दिस सेशन वंडरफुली, क्योंकि मैंने अपने दिल से, आई एम सो मच हैप्पी एंड वंडरफुली उससे मैं इस सेशन को डिलीवर किया है। तो आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग दिस वंडरफुल सेशन। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको थोड़ा सा इसी सेशन को आगे लेके जा रहा हूं, क्योंकि आज मैं इसको ज्यादा से ज्यादा, हाँ, तो सभी का मेरे को फेस से पता चल गया। अब मैं आपको आगे बताऊं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अब आपको सुनिए, अब ध्यान से मैं आगे फर्दर मैं फ्रेंड्स आपको एक चीज बताऊं, जब भी किसी भी आदमी के आप यहां पर डेथ हो जाती है, और जब सब लोग उस आदमी से मिलते हैं ड्यूरिंग मीटिंग और ड्यूरिंग डेथ के बाद जो भी रिचुअल्स होते हैं, और जनरली आप देखेंगे कि लोग उसके राइट कंधे पर, लेफ्ट कंधे पर या राइट कंधे पर हाथ रखकर जाते हैं, अपना राइट हैंड, और उनकी आंखों में एक अलग तरह सा उस समय एक भाव सा होता है, चेहरा लटका होता है। और दूसरी पार वो भी लोग अपने पूरी उसी ग्रीफ में होते हैं। आप अगर फ्रेंड्स, आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं, अगर आप उसके कंधे को 5 साल बाद भी सिर्फ टच करेंगे और उसको देखेंगे, और तो आप उसी समय देख लीजिएगा, सी द मैजिक। और मैजिक ये होगा, दैट पर्सन विल इमीडिएटली एंड गो इनटू दैट स्टेट, और वो इमीडिएटली कह देगा, सर मेरे को अब इस कंधे से ना टच कीजिएगा, मुझे बहुत बुरा लगता है, डोंट टच माई शोल्डर, बिकॉज ही इज नॉट फाइंडिंग हिमसेल्फ इन द राइट स्टेट एट दैट टाइम, क्योंकि आपने उसकी स्टेट को एंकर कर दिया। सोचिए फ्रेंड्स, अगर आप एक प्लेयर को एंकर कर दें और उसी बॉलर को वो देखे और आप उसी फॉर्म में आ जाएं, और अगर उसी तरह से नेक्स्ट टाइम आप अगर फुटबॉल को देखें और अगर अपना बेस्ट गेम खेल कर आ जाएं, और ये आपको मैं बता दूं कि ये आपके ये एंकर कैसे क्रिएट किए जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा। यहां तक मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है, और एग्जाम्पल भी दे दिए, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए, और एग्जाम्पल भी मैं दे सकता हूं। और आपको, जैसे कि आपको मैकडोनल्ड को देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है, एम देखते ही, और आपको देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में इनका एम ऐसा ही रहेगा, एम उल्टा कभी नहीं लिखा जाएगा, कहीं ऐसा लिख दिया, कहीं टेढ़ा लिख दिया, नो, क्योंकि वो एक ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने उसको एंकर कर दिया है। समझ गए?
और फ्रेंड्स आपको एक और बता दूं, समझ गए होंगे आप, और एंकर जितने भी हैं, साइकोलॉजी, जो जितने भी एंकर हैं ये सारे साइकोलॉजिकल काम करते हैं. दे वर्क ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड. और फ्रेंड्स इनके ऊपर कोई लॉजिक नहीं होता, और एंकर्स कभी भी लॉजिकली काम नहीं करते, और ना ही उनको आप लॉजिकली रोक लेंगे. फॉर एग्जाम्पल एक और दे रहा हूं, और अगर आप फ्रेंड्स एक और वंडरफुल एग्जाम्पल बता रहा हूं, अगर आप हिंदुत्व में देखेंगे तो आप सिंदूर, जिसको कहते हैं सिंदूर कहते हैं, और फ्रेंड्स ये भी बता दूं ये एंकर है हमारे लिए, लेडीज के लिए. और फ्रेंड्स आपको पता है लेडीज इस एंकर के लिए अपनी जान तक भी देती हैं. और जब लोग कहते हैं ना सिंदूर की कीमत क्या होती है, और फ्रेंड्स आपको बता दूं अगर लॉजिकली है तो उसकी कीमत सिर्फ 5 पैसे है, और इमोशनल कीमत उसकी क्या है, लाइफ, जिंदगी दे दी जाती है फ्रेंड्स. तो दिस इज कॉल्ड एंकरिंग. और अब मैं फ्रेंड्स आगे भी नेक्स्ट चार्ट को राजीव सर ले आइए आगे. और जो मैं आगे भी आपको बताने जा रहा हूं, जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स. कैसे फ्रेंड्स एंकर हमारी लाइफ में बीमारियों को पैदा करता है, चाहे वो एलर्जी हो, चाहे वो वायरल फीवर, चाहे वो कैंसर, चाहे वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, कोई भी हो, या कोई बीमारी हो. कैसे एंकर आपकी बीमारी को पैदा करते हैं. अगर फ्रेंड्स आपको सीक्रेट बता दूं, अगर आज आपने ये समझ लिया तो फ्रेंड्स फिर आज ही यहीं से आपको आज बहुत वंडरफुल बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने जा रहा है. और इसीलिए मैं आपको इस चैप्टर को, इसी को मैं 2-3 बार आगे भी समझाऊंगा, आगे भी समझा दूंगा, क्योंकि ये मैंने बहुत ही वंडरफुल मेंटर से प्रैक्टिस कर करके सीखा है. और उन्होंने ये बहुत वेलनेस की, बहुत बड़ी साइकोलॉजी की बुक पढ़ के उन्होंने मेरे को बताया था, सिखाया था. और एनएलपी की उन्होंने बुक्स पढ़ी थी, साइकोलॉजी की बुक पढ़ी थी. और मैं अब आपको ये बताने जा रहा हूं, ये भी एक स्टोरी की तरह आपको बहुत ही सभ्य भाव से समझाने जा रहा हूं. और इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन एंड आंसर भी लूंगा. आज मैं पूरे जोन में हूं, प्लीज ले लीजिए आज सब कुछ. आज मेरा बहुत ही वंडरफुल डे है, क्योंकि आई एम सो फीलिंग ब्लेस्ड, हैप्पी हो रहा हूं आपको ये सेशन देते हुए. तो आई नो यू आर आल्सो एंजॉयिंग द सेम. ये 1971 की बात है, 1971 की बात है. सुन लीजिए ध्यान से प्लीज. ये और अब मैं यहाँ पर आपको एक नए डॉक्टर का नाम ले रहा हूं, जो कि आपकी स्क्रीन पे आपके कन्वीनियंस के लिए राजीव सर ने कितना इंपॉर्टेंट देखो चार्ट बनाया है. ये सारी मेहनत उन्हीं की है. ही इज अ वंडरफुल इन्हीं की वजह से मेरा ये वंडरफुल ये सारा सेशन चल रहे हैं. ही इज अ अमेजिंग पर्सन. आप देखेंगे कितना बढ़िया चार्ट बनाते हैं. ही इज वेरी एक्सपर्ट. और अब मैं डॉक्टर रॉबर्ट अटर का नाम ले रहा हूं. ये फ्रेंड्स सारी चीजें गूगल पे पढ़ी हैं, और ये सारी टेक्निकली और साइंटिफिकली मैं चीजें आपको बताने जा रहा हूं. डॉक्टर रॉबर्ट अटर ये फ्रेंड्स ये किस कॉलेज के थे ये भी मैं बता दूं. डॉक्टर रॉबर्ट अडर ये रोचेस्टर स्कूल ऑफ मेडिसिन के थे. पूरी तरह से मैं आपको साइंटिफिकली बता रहा हूं, जो कि एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ताकि आपको लगे कि कुछ आपने सेशन में अटेंड करके आपने कुछ मिला है. आपको ऐसे ही नहीं लग रहा. अब और आपको फ्रेंड्स मैं बहुत ही वंडरफुल इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जहां से कि आपको बता दूं कि मेडिकल साइंस को ब्रेक थ्रू मिला था इससे. मेडिकल साइंस को हाउ डिजीज आर फॉर्म थ्रू योर माइंड.
और 1971 से फ्रेंड्स पहले सिर्फ यही माना जाता था, क्या? इट इज द बॉडी, और इट इज द बॉडी, और आयुर्वेद में सिर्फ यही माना जाता था, एंड इट इज द माइंड दैट बॉडी मेक द सिक। और अब फिर दोबारा फ्रेंड्स मेडिसिन मानने लगी है, एंड इट इज द माइंड दैट मेक द बॉडी सिक, एंड और दैट वाज द यूजुअल एक्सपीरियंस। अब मैं आपको पूरा बताने जा रहा हूं, और इन्होंने अभी तक मैंने पूरा बता दिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लिया, अनदर 10 मिनट। इन्होंने अब यहां पर क्या किया, और इन्होंने फ्रेंड्स इस बार डॉग्स नहीं लिए, दूसरे डॉक्टर का नाम बता रहा हूं, डॉक्टर रॉबर्ट एडर। इन्होंने व्हाइट रैट लिए, WH रैट का मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बना लिया, R1 R2 R3 कुछ रैट्स लिए, व्हाइट रैट्स लिए, व्हाइट रैट्स लिए, और इन चूहों के रैट्स के सामने शुगर वाटर रख दिया। SU स्टैंड फॉर शुगर वाटर, और एक बीच में मैंने वो एक वाटर का वो कैन बना दिया पीने के लिए। ध्यान से सुनना प्लीज। और यहां पर जितने भी लोग बच्चों के ऊपर काम करना चाहते हैं, बच्चों के ऊपर उनकी स्टेट को चेंज करना चाहते हैं, बीमार लोगों के ऊपर काम बताना चाहते हैं, बहुत कुछ मिलने जा रहा है अब आपको आप इसको बहुत ही तसल्ली से सुनना और प्रैक्टिस करना। और मैं आपको टाइम की वरी ना कीजिए, मैं आपके साथ हूं, और मैं आपको पूरी तरह से एंकरिंग का मास्टर बना दूंगा। और आपको भी अच्छा लग रहा होगा कि टाइम आज संडे है, तो आपको एक बहुत ही वंडरफुल चीज मिल जाएगी, तो आप समय की चिंता ना कीजिए प्लीज। और आपने कुछ करना भी नहीं है, तो इसलिए बी कनेक्टेड विद मी। और इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, आगे स्टोरी की तरह मैं सुना रहा हूं कि जैसे ही इन्होंने पानी पिया, तो जैसे ही कोई भी रैट या चूहा पानी पीता, और इन चूहों को वो एक इंजेक्शन लगा देते थे। और मैंने आपकी कन्वीनियंट के लिए इंजेक्शन का नाम भी लिख दिया है, साइक्लोफॉस्फामाइड का इंजेक्शन लगाते थे। कौन सा इंजेक्शन लगाते थे? साइक्लोफॉस्फामाइड का। और साइक्लोफॉस्फामाइड का इंजेक्शन लगाते थे जैसे ही ये चूहे पानी पीते थे, शुगर वाटर को पीते थे। साइक्लो, इसको नोट भी कर सकते हैं आप, लेकिन साइक्लो ये सॉल्ट था, इनको ये इंजेक्शन लगा दिया जाता था। और फ्रेंड्स इस इंजेक्शन की खास बात क्या थी? इस इंजेक्शन से, इन इंजेक्शन से की क्या खास बात थी? इन इंजेक्शन से इन चूहों को वॉमिट हो जाती थी, चूहों को। यानी कि जैसे ही ये पानी पीते, इनको एक सडनली इमीडिएटली एक इंजेक्शन लगा दिया जाता था। सिंपल शुगर वाटर था, शरबत था, जिसको कि हम शरबत कहते हैं, हिंदी में कहते हैं। और साइक्लोफॉस्फामाइड क्या करता था? इनको वॉमिट करा देती थी। अब ये क्या था? जैसे ही ये शुगर वाटर पीते, अचानक उस इंजेक्शन की वजह से वो पीक पर चले जाते थे। और इस पीक का नाम था नौसिया। आपको पता है नौसिया? और कभी कभी आपको नौसिया की फीलिंग आ जाती है, किसी को, आपने सुना होगा डेली आपको नौसिया की फीलिंग कभी कभी आ जाती है। और नौसिया की जैसे ही ये पीक पर जाते थे, और इनके माइंड ने क्या किया, उसी तरह, उन्हीं डॉग्स की तरह, और उन्होंने उसी तरह से शुगर वाटर को इसके साथ लिंक कर लिया। अब इनके माइंड ने सोचा, इट इज बिकॉज ऑफ द शुगर वाटर। यानी कि शुगर वाटर बिकेम देयर एंकर। यहां तक तो आपको क्लियर है, और यहां तक मैं अभी आपको पिछले 1 घंटे से बता भी चुका हूं। अब जैसे ही इनको शुगर वाटर पिलाया जाता,
और ये इमीडिएटली नोसियाटिक की फीलिंग में आकर उल्टी वॉमिटिंग करना शुरू कर देते थे। It became the anchor। यहां तक तो इट बिकेम द एंकर, यहां तक तो आपने सभी ने सुन लिया। अब फ्रेंड्स ध्यान से सुनो, मैजिक तो इसके बाद होता है, ध्यान से सुनेंगे। कुछ दिनों के बाद इन चूहों की मृत्यु होने शुरू होगी। दिस रैट स्टार्ट डाइंग। ध्यान से सुनना प्लीज। डॉक्टर रॉबर्ट एडर और उसकी टीम के लिए एक क्वेश्चन था कि ये मर क्यों रहे हैं, भाई उनकी डेथ क्यों हो रही है, इनके लिए एक बिग क्वेश्चन था। पाया गया जब उनकी पोस्टमार्टम किया तो पाया गया इन चूहों को, तो पाया गया कि फ्रेंड्स उन चूहों को बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है। दे आर कैचिंग लॉट ऑफ इन्फेक्शन। Because of this infection they are dying, और because of this injection they are dying, और उनकी इम्यूनिटी फ्रेंड्स बिल्कुल जीरो है। और उनकी इम्यूनिटी को जब चेक किया गया तो पाया गया कि फ्रेंड्स इनकी इम्यूनिटी बिल्कुल बहुत ही ज्यादा नीचे जा चुकी है फ्रेंड्स, इनकी इम्यूनिटी। और उनके लिए क्वेश्चन हो गया, रॉबर्ट एडर ने कहा कि इनकी इम्यूनिटी नीचे क्यों जा रही है, इससे बिग। तो लेकिन ये तो बाकी चूहों के साथ ही तो रहते हैं, वही एटमॉस्फेयर, वही नौसिया है, वही पानी है, शुगर वाटर है, वही खाना है, लेकिन सिर्फ पानी ही कभी कभी उनका अलग हो जाता है एक्सपेरिमेंट के लिए। लेकिन ये मर क्यों रहे हैं, क्यों इम्यूनिटी इनकी डाउन हो रही है? ध्यान से सुनेंगे फ्रेंड्स अब मेरी एक एक बात को। तो पाया गया, तो जो इंजेक्शन था जिसका नाम ऊपर लिखा है साइक्लोफॉस्फामाइड, वो बेसिकली, तो फ्रेंड्स वो बेसिकली सिर्फ वॉमिट ही कॉज नहीं कर रहा था, वो फ्रेंड्स बेसिकली इम्यूनोसप्रेसर था। वो इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाला था। क्या था? इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाला था। ये क्या होते हैं? जितनी भी आप एंटी एलर्जी गोली खाते हैं, they are all immune suppressor। आप एविल की गोली खा लेते हैं, कभी कभार आप बेटनोसॉल की गोली खा लेते हैं, तो आप एलर्जी होती है, तो आप इमीडिएटली आप अपनी इम्यूनिटी को डाउन करने के लिए इम्यूनिटी सप्रेसर खा लेते हैं। तो ये साइक्लोफॉस्फामाइड, तो पाया गया कि ये तो इम्यूनिटी सप्रेसर था। तो डॉक्टर रॉबर्ट एडर ने कहा बात तो ठीक है, ये इम्यूनिटी सप्रेसर, तो लेकिन ये इंजेक्शन तो हम दे ही नहीं रहे हैं। लेकिन फ्रेंड सिर्फ ये तो एक ही बार दिया गया था, सिर्फ एक ही बार दिया गया था। और फ्रेंड्स यही वो ब्रेक थ्रू था जो मेडिकल साइंस को मिला है। और इस ब्रेक थ्रू का क्या नाम था? कभी भी पढ़ लीजिएगा। इस ब्रेक थ्रू का नाम था फ्रेंड्स PNI, जो कि मैंने चार्ट में लिखा हुआ है। इसको क्या कहा गया? PNI, पूरी P फॉर साइको, N फॉर न्यूरो, I फॉर इम्यूनोलॉजी। और यहां से एलर्जी, कैंसर,
रूमेटाइटिस, अर्थराइटिस, सबकी फ्रेंड्स पोल खुल गई। उसी तरह से पोल खुल गई उनकी, जैसे कि एक ड्रग पेडलर पकड़ा जाता है और सभी की पोल खुल जाती है। साइक्लोनोरोइम्यूनोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बहुत ही वंडरफुल मोर देन 30,000 की बुक है और 20,000 की ये बुक किंडल पर भी पढ़ी है। और मैं आपको बड़ी सूक्ष्म तरीके से इनको बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, वंडरफुल। और फ्रेंड, जिस दिन हुआ ये था, फिर गौर से सुनिएगा, हुआ ये था फ्रेंड्स कि जिस दिन भी उन रैट्स को, व्हाइट रैट्स को ये इंजेक्शन लगा था पहले दिन, और पानी पीते हुए, और उनके पानी पीने के बाद एक नहीं फ्रेंड्स, उस दिन 2 चीजें हुई थी उनके अंदर, उनके चूहों के अंदर 2 चीजें हुई थी रैट्स के अंदर। नंबर 1, वॉमिट हुई थी, जो फ्रेंड्स वॉमिट हुई थी, जो सबको दिखाई दे रही थी, डॉक्टर्स को, और जो वॉमिट की साइकोलॉजी थी वो शुगर वाटर के साथ जुड़ गई थी। और फ्रेंड, दूसरी एक और चीज हुई थी जो कि दिखाई नहीं दी थी, और उनकी इम्यूनिटी स्प्रेस होकर फ्रेंड 0 हो गई थी, और इम्यूनिटी 0 हो गई थी, इम्यूनिटी डाउन हो गई थी, सरेंडर हो गई थी। जो फ्रेंड्स ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो की इम्यूनिटी सरेंडर हो गई थी, जो कि दिखाई नहीं गई थी, और जो इम्यूनिटी सरेंडर हुई थी, और फ्रेंड्स ये भी शुगर वाटर के साथ लिंक हो गई थी। वाह! और जब, यानी कि जब ये शुगर वाटर पिएंगे और इन्हें वॉमिट भी होगी, और इनके अंदर जो इम्यूनिटी भी उनकी साथ के साथ डाउन हो जाएगी। एंड फ्रेंड, दैट वाज द सीक्रेट। और उस दिन के बाद पता चला कि क्या होता है। नाउ लिसन टू मी। और मैं इस चैप्टर को दोबारा भी पढ़ा दूंगा फ्रेंड्स, आप बनाते रहिए नोट। और इसी को मैं इनको राजीव सर को कहूंगा, इसको पूरे को यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी डाल दीजिए। ये बहुत ही वंडरफुल अब सेशन बनता जा रहा है, ये वंडरफुल तरीके से। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह, अभी तक आपको बहुत अच्छी तरह से समझा रहा हूं, और आप होप यू ऑल आर एंजॉयिंग दिस आई ओपनिंग सेशन, जैसा कि मैंने हेडिंग दिया था, यू ऑल आर एंजॉयिंग दिस। तो राजीव सर, इसको आप यूट्यूब पे भी डाल देना और फेसबुक पे भी डाल देना सभी को, क्योंकि मैं इसको पूरी तरह से, पूरी शिद्दत से बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। फिर सुनिएगा फ्रेंड्स इसी को, और फिर सुनिएगा फ्रेंड्स, यहां से एक चीज मिली थी, ध्यान से सुनिएगा। नाउ लिसन टू मी प्लीज केयरफुली। और फ्रेंड्स, ये मैं और आप हैं, जैसे मैंने आपको इवेंट के ऊपर लेके आ रहा हूं नीचे, और एक दिन हमें इवेंट नंबर 1, एक घटना जो कि मैंने पहले बताया हुआ था आपको अपने पहले सेशन में, इवेंट 1 एक घटना हो गई थी। अब बहुत ही वंडरफुल आपको डे टू डे लाइफ के अंदर मैं सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूं, जो आप रोज एंजॉय करते हैं। एक इवेंट 1 हो गया हमारे साथ, घटना। और मान लीजिए कि इवेंट नंबर 1 था, क्या था? नोटबंदी। और आपको नोटबंदी के नाम से 8 नवंबर 2016 में जाएंगे तो आपको नोटबंदी उस दिन हुई थी, यानी कि सारे वो नोट बंद हो गए थे। मोदी जी ने आपकी उस दिन सारी करेंसी को बंद कर दिया था। ये इवेंट घट गई।
और फ्रेंड्स इस इवेंट को आपने जो मैंने पहले बताया था, डिलीट, DDJ, डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज किया। क्या किया आपने? कैसे किया? डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज। अरे भाई क्या होगा? डिस्टॉर्ट कर दिया, अब तो मैं बर्बाद हो गया। और जनरलाइज कर दिया, मेरे पास पैसा नहीं होगा तो दुनिया में से क्या कहेगी, मैं तो बर्बाद हूं। सडनली, और सडनली मान लेते हैं कि आपको फियर आ गया। अब मैं आपको टेक्निकल को डिजीज के बारे में, हाउ डिजीज आपकी बॉडी में आ रही है, उसी के बाद बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुन लीजिए, अनदर 10 मिनट। ये फियर आ गया आपका, जैसे कि चार्ट में भी देख रहे हैं। इवेंट 1 से हुआ, नोटबंदी हुई और डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज करके आपने किया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे साथ क्या होगा, ये हो गया, जनरलाइज कर दिया और आपको फियर आ गया। क्या आ गया? फियर। और फियर में क्या हो गया फ्रेंड्स? मैंने फर्स्ट डे आपको बताया था, फियर में जब भी आपके पास कोई अनवांटेड टाइगर बैठेगा, आपके माइंड के अंदर अनवांटेड टाइगर बैठेगा आपके माइंड के अंदर, तो आपकी इम्यूनिटी 3 तरह से रिएक्ट करेगी। कोई भी 3 तरीके से करेगी। कैसे तरीका? या तो आपकी इम्यूनिटी, जो आपकी इम्यूनिटी है, जो कि हजारों करोड़ों सेल्स हैं, और जो इम्बोला जैसी, स्वाइन फ्लू जैसी, कैंसर जैसी बीमारियों से 1 लाख गुना मजबूत है। ये फ्रेंड्स मैं नहीं कह रहा, ये मेडिकल साइंस कह रही है। एंड दे कैन क्लोन देमसेल्फ। और एक भी सेल्स अगर उसको मारती है और इमीडिएटली अरबों सेल्स तैयार हो जाती हैं। और बैक्टीरिया इतनी जल्दी नहीं पनप सकता जितनी जल्दी हमारे इम्यून सेल बन जाते हैं। लेकिन वो अगर वो सरेंडर कर जाएं, या तो फियर की वजह से उस दिन सरेंडर किया था, या फिर ओवर रिएक्ट किया था, या फिर वो कंफ्यूज हो गई थी। फ्रेंड्स एक एक बात को ध्यान से सुनिए, बड़ी टेक्निकल बात बताने जा रहा हूं। क्या हुआ था? आपकी इम्यूनिटी कौन? इम्यूनिटी आपकी। और फ्रेंड्स आपको पता है फियर कहां से आया था आपका? नोटबंदी से। और मान लेते हैं आप उस समय ओवर रिएक्ट कर रहे थे, आपकी इम्यूनिटी, मान लेते हैं आपकी इम्यूनिटी ओवर रिएक्ट कर रही थी, यानी कि मान लीजिए कि ओवर रिएक्शन चल रहा था, और आप सडनली क्या होगा? आप सडनली बाहर आ गए। ध्यान से सुनना मेरी बात को। और मान लीजिए आप ओवर रिएक्ट हो गए, मान लीजिए कि बाहर डस्ट थी, और अब फ्रेंड्स इस फियर के अब 2 कारण हैं। नंबर 1, इवेंट 1, जो कि उसका रियल कारण था, लेकिन फ्रेंड्स डस्ट उसका इन द मीन टाइम एंकर बन चुकी है। आया समझ? और फ्रेंड जैसे ही आप डस्ट में जाएंगे, आपकी इम्यूनिटी ओवर रिएक्ट कर जाएगी, और फिर एंड में आप कहेंगे आई एम डस्ट एलर्जिक, आई एम एलर्जिक टू डस्ट। और आप अपनी इवेंट भी बना लेंगे अपनी आईज के साथ, और आपको फ्रेंड्स अब आपको डस्ट एलर्जी हो गई है। और हो सकता है जो भी आपके पैसे थे 10-20 करोड़, जिनका भी आपको खोने का डर था, वो डर खत्म हो गया।
यानी कि मान लेते हैं 3 दिन बाद भी ये इवेंट 1 खत्म हो गया, तो फ्रेंड्स आप क्या कहेंगे? वो इवेंट तो रिजॉल्व हो गई थी। आप कैसे कह रहे हैं वो तो रिजॉल्व हो गई थी, बट फिर मेरे को डस्ट से क्यों एलर्जी है? अरे भाई, आपकी वो इवेंट तो रिजॉल्व हो गई है, लेकिन उससे पहले तो ये बन चुका है ना। और फिर आगे सुनिए, एक दिन आप डस्ट में थे और आपको डस्ट में आते ही पता चला कि आप डस्ट में थे, और आपने एक बनाना भी खा लिया। और फ्रेंड्स, चलो अब बनाना और डस्ट, और अब बनाना और डस्ट भी आपकी एलर्जी का कारण बन गया। और फ्रेंड्स, अब आपको सिर्फ डस्ट की एलर्जी नहीं है, बनाना की भी एलर्जी हो गई है। और आप फ्रेंड्स आगे सुनिए, आप एक दिन डस्ट में थे तो आपने वीट खा लिया, और आपके पास डस्ट एलर्जी, डस्ट की एलर्जी, बनाना और वीट की, डस्ट के बाद बनाना की और वीट की। और आप फ्रेंड्स, आपने नोट किया होगा डे टू डे लाइफ में, जिसको भी आप देखेंगे कि एक बार जिसको एलर्जी हो जाती है और उसकी हर 6 मंथ के बाद एलर्जी मल्टीपल हो जाती है, बढ़ती जाती है। और पहले उसको 3 चीजों से थी, तो फिर 10 से हो चुकी है, और फिर 25 से हो चुकी है। आपने ये देखा होगा जनरली हर जगह, बिकॉज एवरी टाइम your immune system is reacting because of these anchors. और आप एक टाइम आता है फ्रेंड्स कि आपको पता चलता है कि आप हर चीज के एलर्जिक हो चुके हैं। और फ्रेंड्स, आप इसी सेशन में अगर कनेक्ट रहेंगे तो आपको एलर्जी भी मैं ठीक करना सिखाऊंगा इसी अगले सेशन के अंदर, इसी तरह। और भी सुनिएगा फ्रेंड्स, अभी आपको और अनदर 5 मिनट। मान लो ये, और आप आगे सुनिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कि मैं और आप हैं और खबर मिल गई, और एक बहुत सी प्यारा सा नाम आता है रेस्टोरेंट का। जब मैं राजकोट से सूरत की तरफ गया था, अहमदाबाद में एक रेस्टोरेंट का नाम आता है, और उसमें मैंने भी लंच किया था, आपको खाना खाया हुआ है आपको, और इसके फोटो बहुत आए थे। और पूरे विश्व में फ्रेंड्स आपको एक चीज सिखा दी है कि इस पूरे वर्ड्स को डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज करो, और आप इमीडिएटली वहां पर आप एकदम से क्या हो गए? फियर में आ गए, वाह, और अनसर्टेनिटी में आ गया। क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन में आ गए, डिप्रेशन में आ गए, और ऊपर से बहुत प्यारे हमारे एंकर्स चिल्ला रहे हैं, कोरोना के केस इतने आ गए आ गए। और फिर मैं, आई होप यू आर एंजॉयिंग माई सेशन। सब सुन रहे हैं? अनदर 5 मिनट के लिए सबको अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है? तो अभी 5 मिनट्स के लिए मैं और आपके अब मैं दोबारा से एक बार फिर थोड़ा सा, और आप मान लो कि ये आप हैं और मैं हूं। अब आपको बताता हूं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस कैसे होता है। आपको सबको लेके चलूंगा मैं। अब यहां पर एक इवेंट आ गई, कोरोना, और आप डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज होके आ गई ये डिजीज। और आपको मैं बार बार कोरोना में कह रहा था कि आप हमेशा फियर में ना रहना, और कोरोना को मजाक से उड़ा दो, कोरोना। और आप अपनी नई स्टेट में आ गए,
और आप फियर में आ गए, और आप देखेंगे कि फियर में, जब भी आपकी फियर में स्टेट आएगी, आपकी इम्यूनिटी जरूर रिएक्ट करेगी। और मान लीजिए कि आपकी इम्यूनिटी रिएक्ट कर गई, और मान लो कि आपकी इम्यूनिटी सरेंडर कर गई, सरेंडर कर गई है इम्यूनिटी आपकी सरेंडर कर गई है फ्रेंड्स, साइकोलॉजिकली। PNI का क्या मतलब मैंने बताया था, साइको ऑन योर माइंड, न्यूरो का माइंड आपके नर्वस सिस्टम पर आ गया फियर, साइकोलॉजी से कहां गया वो, इम्यूनिटी तक। ये रियल है, सरेंडर कर। और अब जब वो सरेंडर कर गई तो आप के जितने भी इम्यूनिटी के सिपाही हैं, दे आर जस्ट डॉर्मेंट और इनएक्टिव हो चुके हैं। और ऐसे में जब ये पीक पर जा रहा था, ध्यान से सुनिए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्यों होता है, जब ये पीक पर जा रहा था फियर, और उसके बाद आप, एक बाबा जी ने कह दिया कि मेरा च्यवनप्राश खा लो, और आपने उस च्यवनप्राश को खा लिया। और अब आप अपने आप ही बता दीजिए च्यवनप्राश आपका किस चीज का एंकर बनेगा। अब तो आपको फियर की भी जरूरत नहीं है अपनी इम्यूनिटी को सरेंडर कराने के लिए। एंड द टेस्ट ऑफ च्यवनप्राश इज एनफ फॉर यू। और फिर आप कहेंगे मैंने तो उसमें च्यवनप्राश भी बहुत खाया, फिर मेरी इम्यूनिटी क्यों डाउन हो गई। और आपको डेली जर्नल रोजाना रैंडम ओपिनियन दे जा रहे हैं, और दीज आर नॉट द साइंटिफिक फैक्ट्स। और आपको जो भी दवाई खानी है, साइंटिफिकली फैक्ट्स ये है, ये भी याद रखिए। एक और आपको सीक्रेट शेयर कर रहा हूं, जो भी आपने दवाई खानी, और आप अपने पुराने बुजुर्गों की बात मानोगे, तो जब भी आप देखोगे कि जब भी कोई भी दवाई खानी होती थी, जिसको आप औषधि कहते थे, जिसको कि आप मेडिसिन कहते थे, उसके खाने का एक तरीका होता था। और आपने देखा होगा कि पहले तो हमारे घरों में आप देखते हैं कि बड़े बुजुर्ग always given the special treatment to the medicine, और वो जनरली उन औषधियों की पूजा करते थे दशहरे के ऊपर, और उन औषधि को रखा करते थे चार्ज के लिए, प्रभु के चरणों में रखा करते थे। और उनके लिए एक ही रूल था, जब भी आप औषधि खाएंगे आप उसको सबसे पहले ऐसी जगह पर रखेंगे, और जो वहीं पर रखेंगे जो कि आपकी वर्शिप की, पूजा की जगह हो। और इससे फ्रेंड्स कुछ नहीं था, सिर्फ एक एंकर बन जाता है आपका। और अगर आपको पता है, आप औषधि को 2 तरीके से खा सकते हैं। नंबर 1, मैं बीमार हूं, आई एम सिक, इसलिए औषधि खा रहा हूं। और फ्रेंड्स दूसरा, आई एम गेटिंग वेल। बताओ ये फ्रेंड्स, दोनों में से कौन सी स्टेट में आपको औषधि खानी चाहिए, मेडिसिन, ए में या बी में? और माय डियर ऑल पार्टिसिपेंट, बी स्टेट में खाइएगा हमेशा अपनी मेडिसिन। और इसी तरह अगर आप जिम में जा रहे हैं, और अगर आप जिम में जा रहे हैं तो सोचिए आप जिम में क्यों जा रहे हैं, और आप ये सोच के जा रहे हैं जिम में कि आई एम फैट, इसलिए मैं जिम कर रहा हूं। या फिर दूसरा आप ये भी कह सकते हैं, आई एम बिकमिंग स्लिम एवरी डे, आई एम बीइंग स्लिम। अब देखिएगा फ्रेंड्स, आप अपने आप ही देख लीजिए कौन सी स्टेट अच्छी है।
अगर आप ए स्टेट में जाएंगे तो ये जिम ही आपको मोटा कर देगा, और बी स्टेट में जाएंगे तो आपको जिम इफेक्टिव रहेगा आपके लिए। इसीलिए इन चीजों को आपकी समझना होगा। तो फ्रेंड्स, अभी तो इसमें काफी सारी इस चैप्टर में बताने की चीजें हैं मेरे पास। आज मैंने अपनी तरफ से अपना बहुत ही वंडरफुल सेशन देने की कोशिश की है आपको, ताकि आपका बहुत ही वंडरफुल सेशन देने की कोशिश की है कि जो कि मेरा लाइफ चेंजिंग है। इस सेशन पे मैं 3 मिनट, 3 घंटे, 3 दिन, 30 घंटे तक भी बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने इसकी इतनी प्रैक्टिस किया। इट इज अ वंडरफुल सेशन, आई लाइक इट। सो मैं एक पार्टिसिपेंट से अगर कोई बोलना चाहता है तो बोल दे 3 मिनट के लिए, 2-3 मिनट के लिए। राजीव सर सबको इनवाइट कीजिए, हाउ डू लाइक। और इस सेशन को पूरे को यूट्यूब पे भी प्लीज और फेसबुक पे भी डाल दीजिए आज, जितना भी आता है शॉर्ट करके या जैसे भी। तो आई इनवाइट ऑल द पार्टिसिपेंट्स हूसोएवर। आज आपकी आई ओपनर सेशन था, बताइए प्लीज। हेलो, हाँ जी, हेलो। यस प्लीज। हाँ, आई एम मनीषा शर्मा। बहुत बढ़िया सेशन था, बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा अमेजिंग था। मतलब रियली नाइस सेशन कि एक आई ओपनर था कि हम कैसे आगे ये इन सब चीजों, पुरानी चीजों को हम छोड़ के आपके सेशन में हम नई उसमें कैसे उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। सो थैंकफुल। अब ये पूरा सेशन आगे चलेगा हफ्ते तक, इसमें बहुत अमेजिंग चीजें आएंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। थैंक यू। अरविंद जी, गुड मॉर्निंग। यस, बहुत ही अमेजिंग सेशन था, बिल्कुल बांध के रखा हुआ था। 1 मिनट भी इधर उधर हिलने का मतलब या देखने का फुर्सत नहीं था। तो मैंने इसीलिए कहा कि ये दिस इज, सबको मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि सबको ये जोड़ो, क्योंकि ये चीजें कहीं भी नहीं मिलेंगी जो मैंने कितने सरल स्वभाव से। अगर यही सेशन आपको टोनी रॉबिन्सन या कोई और कोच देगा, वो लाखों रुपए ले लेगा, लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छी तरह की कोशिश की है। दिस इज माई फर्स्ट सेशन ऑफ माई लाइफ विच आई हैव डिलीवर्ड टू माई पार्टिसिपेंट। सो मेरे को अपने अंदर से इतना बढ़िया मजा आ रहा था, तो ऑटोमेटिक दिल से दिल के तार मिले हुए हैं, तो सभी के मैं अंदर तक जा रहा था। एनर्जी follows thought. Thank you very much, Atul ji. Thank you, sir. Anybody want other one? तो राजीव सर इसको उसमें डाल देना आज यूट्यूब पे और इसमें। जी अरविंद सर।